न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो स्वागत है आपका देश की खबरों में। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। रेवंत रेड्डी पर झूठ बोलने पर जनता को गुमराह करने का आरोप। अवैध विदेशियों पर सख्ती बढ़ाएगी असम सरकार। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 622 सक्रिय मामले। तो खबरें विस्तार से। रेवंत रेड्डी पर झूठ बोलने पर जनता को गुमराह करने का आरोप। हैदराबाद से BRS MLC दासोजो श्रवण कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला किया। श्रवण कुमार ने कहा है कि आज तेलंगाना के लोग मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर गहरी चिंता में हैं। उनका मानना है कि रेवंत रेड्डी न केवल अक्षम और अयोग्य है, बल्कि शासन के महत्वपूर्ण मामलों को समझने में भी असमर्थ साबित हुए। उन्होंने सवाल उठाया है कि कैसे रेवंत रेड्डी राज्य को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदल सकते हैं, जब वे खुद अपने दावों को झूठ और भ्रम पर टिकाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सोचते हैं कि वे झूठ बोलकर लोगों को विश्वास दिला सकते हैं, लेकिन यह जनता के साथ धोखा होगा। हैदराबाद से BRS MLC दासोजो श्रवण कुमार ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी पर तीखा हमला किया। श्रवण कुमार ने कहा है कि आज तेलंगाना के लोग मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली को लेकर गहरी चिंता में हैं। उनका मानना है कि रेवंत रेड्डी न केवल अक्षम और अयोग्य है, बल्कि शासन के महत्वपूर्ण मामलों को समझने में भी असमर्थ साबित हुए। उन्होंने सवाल उठाया है कि कैसे रेवंत रेड्डी राज्य को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में बदल सकते हैं, जब वे खुद अपने दावों को झूठ और भ्रम पर टिकाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। श्रवण कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री सोचते हैं कि वे झूठ बोलकर लोगों को विश्वास दिला सकते हैं, लेकिन यह जनता के साथ धोखा होगा। Incompetent, unable to comprehend the governance, and he turned out to be a total failure. So in order to cover up his failure and mislead the people and manipulate the people, he is coming up with all kinds of this baseless and untenable statements. How can you make it as 1 trillion economy, you tell me? First of all, how will you, he's saying that if I am allowed to continue for 10 years, I'll make it as 1 trillion economy. That's one. Two is, even if you're allowed to make to continue for 10 years, how is that you're going to do? What kind of a policies you have? What kind of a programs you have? Today, the state GSDP is 16 lakhs, and he's talking of an economy of 1 trillion. There must be, I mean, even if he talks, reel out and rattle some numbers, they should be reliable, and people should be able to believe it. Unfortunately, Revanth Reddy thinks that lie after lie he can utter, and then people will believe in it, is what he probably, attempting to do so, which I think is ridiculous on his part. Two, in a scenario where in the state of Telangana, the retired employees are committing suicides because the government is not settling their superannuation benefits. They are compelled enough to go to the High Court, and hundreds of retired employees are going to High Court and get the orders to get their what they are quote unquote entitled to, what is their right to get their superannuation benefit. They have to go to the court, and even after that you are not paying fully, and you are not fulfilling the fee reimbursement, you are not fulfilling any of the poll promises that you made, and they are talking about making the state into a 1 trillion economy. It's as good as Narendra Modi making India into a 5 trillion economy. I think it's stupid, absolutely mediocre kind of statements. I think he should understand what he talks. He should be able to walk. Unfortunately, he's talking and then forgetting to walk. So that's the problem. I think the remaining number of seats, the majority seats, should go to BC, SC, ST and minority. It's an absolutely skewed distribution has been done, and an injustice has been done to the backward classes and minorities. And I demand the Congress High Command to ensure that BCs and minorities get appropriate representation in the forthcoming appointment of ministers of Telangana cabinet. बढ़ती खबर की ओर। अवैध विदेशियों पर सख्ती बढ़ाएगी असम सरकार। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को लेकर राज्य सरकार की नई रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि अब अवैध विदेशियों को पहचान कर सीधे पुशबैक किया जाएगा, यानी उन्हें देश से वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया है कि विदेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन के लिए न्यायपालिका से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य नहीं। उन्होंने कहा है कि पुराना कानून
आवरोचक निष्कासन आदेश अब भी प्रभावी है और इसके तहत जिला कलेक्टर को सीधे कार्रवाई का अधिकार है। असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने अवैध रूप से रह रहे विदेशियों को लेकर राज्य सरकार की नई रणनीति का खुलासा किया। उन्होंने कहा है कि अब अवैध विदेशियों को पहचान कर सीधे पुशबैक किया जाएगा, यानी उन्हें देश से वापस भेजने की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी। शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा नागरिकता अधिनियम की धारा 6A पर सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया गया है कि विदेशी नागरिकों की पहचान और निष्कासन के लिए न्यायपालिका से पूर्वानुमति लेना अनिवार्य नहीं है। उन्होंने कहा है कि पुराना कानून आवरोचक निष्कासन आदेश अब भी प्रभावी है और इसके तहत जिला कलेक्टर को सीधे कार्रवाई का अधिकार है। आमी दुटा बस्तु ठीक करिसु जे सुप्रीम कोर्टत आमी आलोचना करिम मैं कोनोबा एटा सांबादिक मेलत केतियाबा सुप्रीम कोर्टे जेतिया सिटिजेनशिप एक्टर उपरत 6A तार उपरत एटा शुनानी लैছিল আৰু সেইখন সাংবিধানিক বেঞ্চ আছিল। সাংবিধানিক বেঞ্চত এটা কথা সুপ্ৰিম কোৰ্টে উল্লেখ কৰিছে, আমি পৰীক্ষা কৰি আছো যে অসম চৰকাৰে বিদেশী বহিষ্কাৰৰ কাৰণে ন্যায়াধিকৰণতে গৈ থাকিব লাগে যে তেনেকুৱা কোনো কথা নাই। ইমিগ্ৰেণ্টছ এক্সপেল অৰ্ডাৰ বুলি এখন পুৰণা আইন আছিল। সুপ্ৰিম কোৰ্টে কৈছে যে এই আইনখন এতিয়াও বলবৎ আছে আৰু সেই আইনখন মতে DCA লগে লগে অৰ্ডাৰ কৰি পুশবেক কৰাৰো পাৰমিশন দিব পাৰে। এই কথাটো যিকোনো কাৰণতে হওক আমাৰ উকিলেও আমাক জনোৱা নাছিল, আমিও গম পোৱা নাছিলোঁ। যোৱা কেইদিনমানত এই গোটেই ঘটনাটো আমাৰ পোহৰলৈ আহিছে, সেইকাৰণে আমি বিষয়টো আলোচনা কৰিম আৰু পুশবেক এইটো চলিব আৰু বিদেশী চিনাক্তকৰণৰ কাম NRCৰ কাৰণে ৰখি আছিল, সেইটো এতিয়া আৰু অলপ আমি স্পীড আপ কৰিম আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াটো আকৌ চলিব, অলপ তীব্ৰ গতিত চলিব নহয় অকণমান তীব্ৰ গতিত চলিব। আৰু এইবাৰ চিনাক্ত হ'লে আৰু আমি ট্ৰিব্যুনেলত পঠোৱা দৰকাৰ নাই, পোনে পোনে আমি পোষ্টবেক কৰিম। গতিকে তাৰ কাৰণে এইকেইদিন প্ৰস্তুতি চলি আছে আৰু আপোনালোকে বিদেশী পুশবেক কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে আমি বহুখিনি পুশবেক কৰিছোঁ, কিন্তু যাৰ কোৰ্টত কেছ আছে আমি তাক কৰা নাই আৰু বাকি সংখ্যাটো লাহে লাহে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু বাঢ়ি গৈ থাকিব। बढ़ती अगली खबर क्या, पश्चिम बंगाल में कोविड-19 के 622 सक्रिय मामले। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हल्की वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। ESI मानिकतला के पूर्व नोडल अधिकारी डॉक्टर सयान मिश्रा ने जानकारी दी है कि वर्तमान में राज्य में कुल 622 सक्रिय कोविड मामले। पिछले 24 घंटों में 26 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 88 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई कोविड से जुड़ी मौत दर्ज नहीं की गई। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में हल्की वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार फिलहाल स्थिति चिंताजनक नहीं है। ESI मानिकतला के पूर्व नोडल अधिकारी डॉक्टर सयान मिश्रा ने जानकारी दी है कि वर्तमान में राज्य में कुल 622 सक्रिय कोविड मामले। पिछले 24 घंटों में 26 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 88 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि राहत की बात यह है कि इस दौरान कोई कोविड से जुड़ी मौत दर्ज नहीं की गई। कि अभी तक वेस्ट बंगाल में, हाँ, इंडिया में टोटल बहुत केस बढ़ा है। हम लोग अगर स्टेट का बात करें वेस्ट बंगाल में, तो टोटल अभी 622 केसेस अभी चल रहे हैं, अभी टोटल केस रिपोर्टेड है। उसमें से अगर इंक्रीज हुआ है, अगर यस्टरडे से हम लोग देखते हैं ट्रीटमेंट एड ऑन हुआ है, तो 26 केसेस एड ऑन हुए हैं और 88 केसेस डिस्चार्ज हो गए वेल। तो यही केस है। वेस्ट बंगाल में हमारे स्टेट में अभी तक कोई डेथ हुआ नहीं है ड्यू टू कोविड। ये जो डाटा आपने शेयर किया है, ये कि स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से है या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? ये स्टेट गवर्नमेंट ही सेंट्रल गवर्नमेंट को डाटा देती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इसको रीचेक करके इसको रिलीज करती है। तो अगर हम लोग दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो बंगाल कितना भी स्टेबल है इस मामले में? कोविड को लेकर डरने वाली बात ना, देखिए सर, स्टेबल अनस्टेबल की बात इसमें कुछ नहीं है। इसमें अगर दूसरे स्टेट से अगर कंपेयर भी करें तो देखिए, एक चीज है कि दूसरे स्टेट में जैसा डेथ हुआ है, वेस्ट बंगाल में कोई डेथ केस है नहीं। टोटल डेथ्स हुआ है 4। वेस्ट बंगाल में कोई डेथ अभी तक रिपोर्टेड है नहीं, तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। इस कोविड केस में कोई डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओमिक्रॉन का ही एक म्यूटेटेड वेरिएंट है। अब ओमिक्रॉन में जैसा था कोई डेथ उतना हो नहीं रहा था, म्यूटेटेड वेरिएंट में क्या आया है, इसका मेन प्रॉब्लम है कि ये इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, स्प्रेड बहुत जल्दी हो रहा है, लेकिन लाइफ थ्रेटनिंग या सीरियस कंडीशन नहीं है ये। कोविड से हमेशा ही लोग डरते
सकते हैं? अगर इस बार के ये जो कोविड अभी इस बार आया है तो कितना डरने की बात है, क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए? पहली बात तो इस वेरिएंट को लेकर कोई डरने की बात नहीं है। स्पेशली जो लोग वैक्सीन ले चुके हैं सब डोजेस, वो लोग तो और भी ना डरे, क्योंकि ये जो कोविड के वैक्सीन की वजह से जो इम्यूनिटी हुआ है, ये स्ट्रेन उस इम्यूनिटी को सुपरसीड करके इन्फेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो अगर कोविड इन्फेक्शन होता भी है तो जस्ट प्रिकॉशन लेना है कि हमको 5 डेज टू मैक्सिमम 7 डेज आइसोलेशन, मास्क पहनना है, सैनिटाइजेशन आइदर बाय सोप, बाहर रहने से हैंड सैनिटाइजर पॉकेट में रखना है, और किसी से बात करना है तो 6 फीट का डिस्टेंस मेंटेन करना, और कुछ नहीं। एज वाइज अगर बोले तो किसी इफेक्ट कर रहा है? सब एज में ही इफेक्ट कर रहा है, बच्चों को कम, बड़ों को ही ज्यादा कर रहा है। बढ़ती खबर की ओर, अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों पर हुई चर्चा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्थित राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा के लिए आयोजित की गई है। बैठक में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें यात्रा मार्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त प्रबंधों को लेकर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्थित राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा के लिए आयोजित की गई है। बैठक में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें यात्रा मार्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त प्रबंधों को लेकर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर स्थित राजभवन में श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड की 49वीं बैठक की अध्यक्षता की। यह बैठक आगामी अमरनाथ यात्रा 2025 की तैयारियों, श्रद्धालुओं की सुविधाओं की समीक्षा के लिए आयोजित की गई है। बैठक में बोर्ड के सदस्यों और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया है। इसमें यात्रा मार्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त प्रबंधों को लेकर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने कहा है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सर्वोच्च प्राथमिकता है। अगली खबर, कांग्रेस नेता उदित राज ने चुनाव आयोग पर उठाए कई सवाल। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र और बिहार चुनाव को लेकर किए गए ट्वीट पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उदित राज ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े और हटाए जाने जैसे अहम सवालों का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 5 महीनों में जोड़े गए मतदाताओं की संख्या 5 साल में जोड़े गए मतदाताओं से ज्यादा कैसे हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने वीडियो फुटेज देने से भी इनकार कर दिया है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा महाराष्ट्र और बिहार चुनाव को लेकर किए गए ट्वीट पर चुनाव आयोग के जवाब के बाद कांग्रेस नेता उदित राज ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उदित राज ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने फर्जी मतदाताओं के नाम जोड़े और हटाए जाने जैसे अहम सवालों का जवाब नहीं दिया है। उन्होंने सवाल उठाया कि 5 महीनों में जोड़े गए मतदाताओं की संख्या 5 साल में जोड़े गए मतदाताओं से ज्यादा कैसे हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि चुनाव आयोग ने वीडियो फुटेज देने से भी इनकार कर दिया है, जिससे पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उसी समय प्रमाण दिया गया था कि हजारों की संख्या में जो फर्जी वोटर जोड़े गए थे और काटे भी गए थे, जोड़े भी गए थे, उसका जवाब चुनाव आयोग ने नहीं दिया। और यह चुनाव आयोग ने इसका भी जवाब नहीं दिया कि 5 साल में जितने वोटर ऐड हुए उससे ज्यादा कहीं 5 महीने में हो गए, उसका जवाब नहीं दिया। और चुनाव आयोग तो अब तो फुटेज, जो वीडियो फुटेज है, ये भी देने से मना किया है। और जो राहुल जी ने पॉइंट उठाए हैं आज के संपादकीय में, वो जो 24 तारीख का जो 24 दिसंबर 2024 का है, शायद दिसंबर 24 का है, और वेबसाइट में जो आयोग ने जवाब अपलोड किया है, तो जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो सवाल उठाए गए हैं उसका सीधा जवाब न देकर गोलमोल जवाब दे रही है। और जब भी चुनाव आयोग से सवाल जवाब किया जाता है, बीजेपी ढाल की तरह खड़ी हो जाती है। ये जो चुनाव है तो बेईमानी का चुनाव है और इलेक्टेड ऑटोक्रेसी हो गया भारत के अंदर। ईवीएम की मैनिपुलेशन है, इलेक्टोरल रोल में मैनिपुलेशन है,
कई लेवल पर मैनिपुलेशन है। और दुनिया में जो सबसे ज्यादा एडवांस कंट्रीज हैं जहां कभी ईवीएम हुआ करता था, उन लोगों ने कहा कि हैक होता है, चाहे एलन मस्क है या तुलसी गबार्ड है, और ट्रंप ने भी कहा है। अमेरिका के मुकाबले में हम लोग कहाँ हैं, बहुत पीछे हैं डिजिटल वर्ल्ड में। जब वो लोग इस पर विश्वास नहीं करते तो ईवीएम से चुनाव क्यों हो रहा है? और ये मैनिपुलेशन से ही चुनाव जीत रहे हैं। और जब चुनाव के बाद में मॉक एक्सरसाइज हो रहा था एक दो जगहों पर, जहां पर भारी निराशा था कि हमने वोट फला कैंडिडेट को दिया है लेकिन हमारा वोट कहाँ गया, तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन ने जाकर के सारा बंद करा दिया और वहां से लोगों को भगा दिया। इसके मतलब कि गड़बड़ है। लेकिन अब इतिहास के पन्ने खंगाले जा रहे हैं। अब वक्त हो चला देश को ब्रेक का। ब्रेक के बाद की खबरें मेरे सहयोगी मीनल के साथ। अब तक के लिए देखते रहिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। धन्यवाद। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।